Hello and good morning. Welcome to this special broadcast on All India Radio. It's a bright, sunny morning there. Weather conditions, weather forecast in Hamilton not looking great was what was predicted, but things looking good. The cover's on, no rain, so a good contest between India and New Zealand as India look to come back. New Zealand look to keep that winning juggernaut going. I am Anil Thomas welcoming you this morning on All India Radio. With me to take you through the next 30 minutes is Damini. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल मैं हूं आपकी होस्ट दामिनी जुयाल और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दो गेस्ट जिनका मैं स्वागत करना चाहूंगी जो है कर्नल भूपराज सिंह फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और साथ ही मलय नीरव सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आपका स्वागत है Thank you very much. Thank you very much. Well, let me start with Colonel Bhupraj. How do you look at this particular contest? How does India approach it? We are one down. We need to come back, claw ourselves back. A rain forecast there at Hamilton. So how does a team approach this particular contest? Actually, before I get specific to this rain-curtailed match, if in case it rains, let's analyze, what happened in the last match. There were 2-3 things that, led to our defeat. Coming to our batting first, we had 3 of our players who scored over 50 runs. But they could not continue their innings. Like the way Nathan batted, he got a big score. Had one of them, got a big score, then others would have played along with him and we would have got about 350. That was a safe target for us. The next issue, the problem with our batting was that most of the guys except for Sundar, their scoring rate was very slow. So the total that we achieved, 300, was not a very big challenging total on that flat wicket. Okay. So we require to score slightly faster. And if it is going to rain today, then it's better to bowl first, see what the target is, and then possibly chase it down. Right. Okay. And Malay, what do you think? The venue has been changed today and it's Sidon Park. And this is known a good batting field. So what should be the approach for the team today? Well, in the last 3 years, since 1920, there have been 3 matches played here at Sidon Park, and Sidon Park is known for yielding too many runs. In fact, if you recall, India made 347 and New Zealand chased it, and they won. So it has got full of runs. The wicket here has got full of runs, but I also must tell your listeners that this is the wicket where Shreyas Iyer made a century in 2020, and it was a fantastic game of cricket that he brought in there. See, I reckon that since it has been raining, there will be some moisture in the pitch. And that is where the captains will have to decide what are they going to do first, even if they win the toss. So it's going to be an interesting kind of a duel. And don't forget that it is a practice match for the World Cup. So they will try to put their best foot forward, and they'll also bring in someone or the other. Right. एंड जिन श्रोताओं को नहीं पता है इस वेन्यू के बारे में उन्हें थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आज इस ग्राउंड की कैपेसिटी है 10,000. साथ ही ये लोकेटेड है सेंटर ऑफ हैमिल्टन में, न्यूजीलैंड में, जो है साउथ ऑफ ऑकलैंड में. तो एक अलग ग्राउंड आज देखने को मिलेगा, एक अलग तरीके का गेम देखने को मिलेगा क्योंकि पिछला मैच था ईडन पार्क में, आज है सिडोन पार्क में. तो आज का मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. आपको क्या लगता है अनिल? Bilkul, it's going to be an interesting contest between bat and ball. But let's also tell our listeners the numbers that you could call in with your questions for our guest in the studios. 011-234-210-84 and 85. You can keep calling, put in your request on the questions that you have for our guest. Let me come to Colonel Bhupraj. Looking at Shardul Thakur and the way he bowled and India's lack of a 6th bowling option in that particular contest, a likelihood that captain can go ahead and get Deepak Hooda into the playing level. Actually, जो पिछला जो हमारा मैच हुआ था, we played with 5 bowlers. Now, out of those 5 bowlers, one was a batting all-rounder, that was Washington Sundar. तो अगर विकेट जो सी है ड्रॉप इन टाइप जैसे पिछली बार थी विकेट, अगर उस टाइप की विकेट है, वी मस्ट हैव 6 bowlers. तो उस केस में आप शार्दुल ठाकुर को ड्रॉप भी कर सकते हैं. शार्दुल ठाकुर के बारे में ही bowls well in the first 4-5 overs when the ball is new. उसके बाद उतनी स्पीड नहीं है टू ट्रबल दीज गुड न्यूजीलैंड बैट्समैन. तो थोड़ा सा चेंज करके देख सकते हैं. इट कुड बी दीपक हुड्डा, इट कुड बी दीपक चाहर. यू हैव ए ऑप्शन.
राइट एंड वाले हम लोग को यहाँ इंडिया की तो बात हम लोगों ने करी कि कौन से प्लेयर्स को हटा सकते हैं कौन से को रख सकते हैं बट व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूजीलैंड वी हैव सीन अ स्ट्रॉन्ग गेम इन द लास्ट मैच if you remember like Tom Latham they have played like 145 runs and it was highly like what shall I say Very it's charged amazing up yes innings yes coming from yes the momentum of the game was very nice या वो तो सब ठीक है। देखिए न्यूजीलैंड के पास कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने पिछले में नहीं खेला और उसके कारण था माइकल ब्रेसवेल जैसे, और उसके बाद जेम्स नीशम उस समय पूरी तरह फिट नहीं थे, एक ऑलराउंडर हैं, तो एक ऑप्शन उनके पास ये है। मगर I mean, nobody wants to change the winning combination in normal circumstances. However, if I can guess there, since they want to try all their players, तो देखते हैं कि अब वो कोई चेंज करते हैं या नहीं करते हैं। कर्नल बुपराज, अगर भारत की बल्लेबाजी या फिर स्काई की बात करें, सूर्य कुमार यादव, अगर सूर्य कुमार यादव को T20 में बड़ा जबरदस्त बल्लेबाज मानते हैं, लेकिन एक दिवसीय क्रिकेट में उस तरह की बल्लेबाजी उनसे देखी नहीं अब तक। अगर पिछले 7 मुकाबलों पर नजर डाले सिर्फ 27 रन है और कोई बड़ा दमखम नहीं दिखाते, तो ऐसे में कप्तान एक रिस्क ले सकते हैं सूर्य कुमार को ड्रॉप कर दीपक हुड्डा को लाने के लिए बैटिंग ऑर्डर। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। सूर्य कुमार यादव इज इन ट्रेमेंडस फॉर्म, तो अगर आप देखिए पिछले मैच में ही गॉट आउट इन 3-4 बॉल खेली उन्होंने, तो इफ इन फॉर्म बैट्समैन कभी ही हैज अ बैड डे आल्सो, तो आई विल नॉट रिकमेंड ड्रॉपिंग सूर्य कुमार यादव एंड पुटिंग समबडी एल्स। अगर आप एक्चुअली देखिए ना, हमारी बॉलिंग वीक है, बैटिंग में तो हमने 300 रन कर दिए थे, तो ड्रॉपिंग सूर्या इज नॉट एडवाइजेबल। right and Anil, if you remember, we just have like Umran Malik who was able to do something good in the last match. मले अगर उमरान की बात करें, उमरान ने जिस तरह गेंदबाजी की, इंप्रेस किया डेब्यू पे, और प्रेशर रहेगा अर्शदीप का, जिस तरह से गेंदबाजी अर्शदीप और उमरान से दोनों ही डेब्यूटांस थे, तो ऐसे में अर्शदीप की क्या स्ट्रैटेजी होगी और उमरान की क्या स्ट्रैटेजी होगी इस तरह के विकेट में? हाई स्कोरिंग विकेट होता है। आज ही थोड़ी देर पहले अर्शदीप ने ये कहा है कि मुझे तो जैसा कप्तान कहेगा वैसा, अगर कहेगा एग्रेसिव खेल दिखाने के लिए मैं एग्रेसिव खेलूंगा, अगर वो कहेगा रन्स कंटेन करो तो मैं रन्स कंटेन करूंगा। भारत के पास बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शंस नहीं हैं। एक दीपक चार हैं और शार्दुल ठाकुर कभी हाथ खींच रहे हैं, कभी पाँव खींच रहे हैं, कभी घुटना देख रहे हैं, कभी दाहिने देख रहे हैं, कभी बाएं देख रहे हैं। लग रहा है कि उन्हें चोट कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी लगी हुई है। तो मेरा अपना एक ख्याल है कि शायद आज आप शार्दुल ठाकुर को न देखें मैदान पर और उनकी जगह दीपक चाहर हैं शायद। जिस तरह की खबरें आ रही हैं और जिस तरह से आपने भी देखा, हम दोनों पिछले मैच में देख रहे थे कि वो बहुत फिट नहीं दिख रहे थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स। तो हमारे इसी डिस्कशन पे कुछ कहने के लिए हमारे कॉलर्स जुड़ चुके हैं, उन्हें लिया जाए उन कॉलर्स को, उनसे बात करी जाए, उनसे सुना जाए वो क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ श्रोता जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। बताइए अपना नाम, पूछिए अपना सवाल। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले आप लोग को वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बताइए अपना नाम। जी, मेरा नाम बिट्टू कुमार सिंह, समस्तीपुर बोचहा से बात कर रहा हूँ। स्वागत है आपका। जी सर, मेरा कॉल पहला बार लगा है आज। बिल्कुल स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा सवाल ये है कि हम ब्लाइंड हैं, हम लोग को कमेंट्री अच्छा लगता है, बढ़िया कमेंट्री होना चाहिए, दिलीप गर को कमेंट्री में क्यों नहीं लाया जाता है? और दूसरा सवाल ये है पूछिए। कि हार्दिक पांड्या को ड्रॉप क्यों किया गया और शिखर धवन को पानी क्यों नहीं लाया गया? ये अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। हार्दिक पांड्या को ड्रॉप क्यों किया गया? फले जी, आप लेना चाहेंगे सवाल? नहीं, हार्दिक पांड्या को ड्रॉप नहीं किया गया, कई लोग नहीं खेल रहे हैं, आगे खिलाड़ियों को थोड़ा विश्राम देने की ज़रूरत है। तो 6 खिलाड़ी हैं टॉप के जो नहीं खेल रहे हैं, इसलिए मेरे ख्याल से जो नहीं है टीम में और 15 में उसके बारे में बात करने का बहुत। चलिए, एक और कॉलर, एक और श्रोता हमारे साथ वेट कर रहे हैं। स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार तो मैम, मेरा एक प्रश्न है जी। हम सब टीमों में जो है कप्तान ही बदलते रहते हैं, तो मैम दूसरी टीमें नहीं कप्तान बदलती हैं। आप ऑस्ट्रेलिया देखें, पाकिस्तान देखें, इंग्लैंड देखें,
एक सर कोई कोई गली देखिए टीम थोड़ी है, तो कभी ऋषभ पंत, तो कभी शिखर धवन, कभी रोहित शर्मा, तक कभी केएल राहुल, कभी पांड्या, तो ऐसे थोड़ी टीमें बनती है। फिर हमें वर्ल्ड कप में जो है दिक्कत होती है। आप कहते हैं कि रोटेन पॉलिसी, तो वही आईपीएल में क्यों नहीं होता है? इसलिए हमें वर्ल्ड कप में दिक्कत होती है। तो क्योंकि फिर जो खिलाड़ी जज नहीं होता है, कप्तान ही आपके गली लेके होते हैं कि भाई कि कल मैं कप्तान, परसों तू कप्तान हो गया। Colonel Bopras, musical chairs of captaincy in Indian dressing room, cause of concern? Yeah, I am also, not in favor of, so frequent changing of the captains. But agar aap dekhiye, Shikhar Dhawan, he has led the Indian team where the main players are not playing. And he is also quite an experienced guy. So, वैसे, I am not in favor of, changing captains like this. Okay. Right. And what about Kane Williamson? What do you want to say about him? Kane Williamson, last 3 years, 3.5 years, only 7 matches. He had certain injury issues in his elbow. But the way he showed his grit and determination and the way he sacrificed his century in the last match, I personally feel that he is the man to watch. And the kind of patience and approach which he has, the way he sheet anchors his team, that is something which other captains and other good players should learn from. बिल्कुल, हमारे श्वेता यहाँ इंतजार कर रहे होंगे टॉस में क्यों देरी हो रही है। पिच वहां से रिपोर्ट ये है कि 6:40 को टॉस होगा और मैच लेकिन लगभग 7 बजे स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट में डिले नहीं है, टॉस में जरूर 10 मिनट का डिले है इस मुकाबले के शुरुआत में। कल बुपराज, अगर भारतीय टीम के कॉम्बिनेशन की हमने बात की, लेकिन न्यूजीलैंड का जो अप्रोच है इस पूरे एक दिवसीय श्रृंखला में, न्यूजीलैंड जो सुपर लीग है उसके पॉइंट्स टेबल को टॉप करने की कोशिश करेगा आज के मुकाबले को जीतते हुए। तो ऐसे में न्यूजीलैंड का अप्रोच क्या रहेगा इस पर्टिकुलर हाई स्कोरिंग विकेट पर? देखिए, आप न्यूजीलैंड का जो बैटिंग है वो बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आप उनकी जो 5-6 बैट्समैन जो शुरू के उनको एनालाइज करोगे, तो केन विलियमसन जोन से है ना, वो एक एंड को पकड़ लेते हैं। अगर आप उनको शुरू में आउट ना करें तो वो अच्छी फॉर्म में लंबा स्कोर करते हैं। एंड द अदर 4-5 प्लेयर्स प्ले अराउंड केन विलियमसन। तो ही इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज फार एज द न्यूजीलैंड टीम इज़ कंसर्न। एंड एज फार एज द बॉलिंग इज़ कंसर्न, तो फर्गूसन है इस विकेट के ऊपर, उनकी पेस है, तो ही कैन गेट विकेट्स। And I'm sure, with this kind of attack they have and this kind of a solid batting they have, they'll try to win this match and come on top of the points table. मले हम लोगों ने यहाँ पर परफॉर्मेंस देखी न्यूजीलैंड की बहुत स्ट्रांग थी। और आज के अगर हम टॉस की बात करें, हम मान लेते हैं अगर बाई चांस हम इंडिया जीत जाती है टॉस, तो इंडिया को किस तरीके की अप्रोच इस समय रखनी चाहिए पिछले वाले मैच को देखते हुए आपके हिसाब से? पिछले मैच को देखते हुए, आज के वेदर कंडीशंस को देखते हुए, डकवर्थ लिविस को लागू होने की संभावना को देखते हुए, मुझे लगता है पहले तो आप दूसरे को बैटिंग करने दें। वहीं अगर न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड टीम में ट्रेंट बोल्ट नहीं है, मार्टिन गुप्टिल नहीं है, लेकिन टीम में फिर भी उस तरह का डेप्थ दिखता हुआ, ऑलराउंडर्स का डेप्थ, क्या ये बड़ा डिफरेंस दिखता है भारत और न्यूजीलैंड के बीच? As far as batting is concerned, they are a more well-balanced side. ये जो इनकी टीम है, यही टीम है जो सारे टूर्नामेंट खेल रही है। मार्टिन गुप्टिल इज एक्चुअली ऑन हिज वे आउट। तो बाकी ये जो से हैं, फिन एलन, कॉनवॉय, मिचेल एंड लेथम, दे आर वेरी गुड प्लेयर्स। तो दे आर प्लेइंग विद ए मेन टीम, वेयर एज हमारे कुछ प्लेयर्स थोड़े से बड़े प्लेयर्स हैं वो जो रेस्टेड हैं। एज फार एज द बॉलिंग इज कंसर्न, येस, ट्रेंट बोल्ट इज नॉट देयर, बट वो बाकी मैट हेनरी वगैरह कोशिश करते हैं, बट वो उतने लीथल नहीं है जितने ट्रेंट बोल्ट हैं। दूसरा, ट्रेंट बोल्ट की भी थोड़ी उम्र हो गई है, तो उनकी भी जो स्पीड है थोड़ी कम हो गई है। अगर वो शुरू के 1-2 ओवर में विकेट नहीं लेते तो ही ऑल्सो गोज फॉर रन्स। तो अदरवाइज दे आर ए वेल बैलेंस साइड। एंड एज फार दी स्पिनर्स आर कंसर्न, सैंटनर इज बॉलिंग वेरी वेल, ही इज रिस्ट्रिक्टिंग द बैट्समैन एंड अच्छा है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। Saudi is bowling well. He took 3 wickets in the last match, so they are a well-balanced side. Right. And Malay, what do you think about Shreyas Iyer? He has played really well in the last one. He tried his best to get a good score for India. He has scored 80 in the last match. So what do you think about him? He's what the most consistent, most reliable batsman who knows the New Zealand conditions very well, and one should expect him to do well here also. दामिनी, अगर स्काई भारत के लिए T20 में एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में
तो वही काम श्रेयस करते हैं भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में। हमारे साथ एक और श्रोता यहाँ जुड़ते हुए, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। अनिल कौशल इंदौर से। स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर हमारा सवाल ये है कि ये जो अपनी टीम के जो बड़े बड़े प्लेयर भारत के, रोहित शर्मा, अश्विन और शिखर धवन वगैरह, इनको है आईपीएल से बाहर करना चाहिए, क्योंकि ये आईपीएल में इतने थक जाते हैं। भारत में आपने देखा होगा कि आईपीएल रहता है मार्च महीने से। चलिए अब टॉस की Kane, you won the toss, and I think I heard you say you're going to be having a bowl. Is that because of the chance of a little bit of weather? Yeah, you factor that in a little bit. Surface has been under covers for a little bit, but having said that, it does look like a good wicket, so try and make use of it first up. Looks, it's a good brown colour, but there is a lot of grass on it, isn't there? Yeah, hopefully our seamers can extract a little bit out of it first up, and we're playing the extra slow option as well today, and Michael Bracewell for Adam Milne as well. Okay, and so that means that Tim Southey, of course, in the side, 150th one-day international for him. That's a nice milestone. Yeah, a great achievement. He's sort of racking up the numbers in all formats and breaking a few records along the way. We're celebrating something every week at the moment, so an incredible achievement, longevity in the game, and a special player for us. You must be, feeling good after a really good team performance in the last game. You were happy enough with the bowling, 306, so bowling first, nowhere really to improve? Oh, certainly the effort was there, and India played really well with the bat and got a competitive total on that surface, but certainly like the intent from the bowling attack, so hopefully we can start strong again. It was a nice performance in the last one, but we want to try and build on that. All right, get a short turnaround, all the best. Shikha, you're having to have a bat first. Probably not ideal given that there's a chance of rain. Yep, absolutely. We would have bowled first. I can see that there's a moisture in the wicket, and because it's been raining a lot, and that's why wicket's keeping under the covers, of course. Yeah. So I suppose what you need to decide on is a pace that you want to bat at first up. With the chance of a shortened game, perhaps you go a little bit harder early on? Yep, absolutely. We have to go with the pace of the game, and even in the last match, first 10-15 overs wicket were seeming a bit, but we played quite well, and we thought that we put good total. And yep, even if the conditions are hard, still we have to keep the positive intent and go for the runs. Any changes to your side? Yeah, we got two changes. So instead of Shardul Thakur, Deepak Chahar comes in, and instead of Sanju Samson, Deepak Hooda comes in. I thought you guys actually played pretty well up the road in Auckland. New Zealand counted and played, just played a little bit better. So where are the areas that you feel you need to step up today? I feel that we only need 10% of improvement, and of course situations were a bit different in first 15 overs of our batting and their batting, and 10% of everything makes a huge impact, and especially in death bowling, we have to be a bit more smart or mindful about it. All right, all the best. New Zealand has won the toss, and no surprises with a bit of rain around that they've decided they'll bowl first. तो बिल्कुल टॉस न्यूजीलैंड एक बार फिर जीतने में कामयाब। न्यूजीलैंड ने पहले क्षेत्र रक्षण का निर्णय, यानी भारतीय टीम बल्लेबाजी करेगी। भारतीय टीम में दो बदलाव, दीपक चहर वापस आते हुए शार्दुल ठाकुर की जगह, वहीं दीपक हुडा टीम में आते हुए संजू सैमसन की जगह। कर्नल बुपराज, सबसे पहले संजू सैमसन को ड्रॉप करके दीपक हुडा, सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन की तलाश में भारत, यहाँ जिस तरह से दीपक हुड्डा को लाया गया है इस मुकाबले में। इट्स ए गुड ऑप्शन, बट अगर आप देखो तो संजू सैमसन प्लेड वेल इन द लास्ट मैच। 36 रन, अच्छे रन बनाए थे उन्होंने। तो दीपक हुड्डा भी बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, जब भी उनको मौका मिलता है ही प्लेज वेल, एंड ऑफ कोर्स दैट बॉलिंग ऑप्शन एक्स्ट्रा एक है हमारे पास, तो इट्स ए गुड चेंज। एंड एज फार एज दीपक चाहर इज कंसर्न्ड, वो इस काइंड ऑफ वेदर कंडीशन और इस काइंड ऑफ विकेट पे मेरे ख्याल से काफ़ी इफेक्टिव हो जाएंगे। ओके, Right. And Malay, he has also mentioned about the ground, that it's still moisture is there on the ground. So what do you think? What should be the approach? Oh, this is what I was saying earlier, that the pitch has some moisture. It will help the bowlers, the pacers. And look at their setting now. They have got four good pacers and 3 all-rounders, right? So it's going to be a tough game for either of the two sides. Indians will try to capitalize, but I am a bit surprised over the exclusion of Sanju Samson, honestly speaking. I mean, if you're there to try out some new
hands and see if they are performing well or not. And Sanju can do wicket keeping very good, very well. So I'm a bit surprised. वहीं न्यूजीलैंड में कल बुपराज एक चेंज देखने को मिला है। एडम मिल ने जगह बनाया या ब्रेसवेल के लिए, यानी एक और ऑप्शन वहां, वो भी थोड़ा ट्वीकर्स ट्राई करना चाह रहे हैं न्यूजीलैंड के कप्तान इस विकेट पर। Bracewell is a off spinner, and he is more of a batsman. कोई खास ऐसी उसने परफॉर्मेंस ODIs में दी नहीं है as far as bowling is concerned. But yes, of course, they have this option of off spinner also. So let's see how it works out. राइट। और इसी के साथ अनिल, हमारे साथ कुछ कॉलर्स जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं आज के मैच को लेके। हेलो हेलो, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मलई जी से खास करके पूछना चाहता हूँ कि मलई जी, ये डकवर्थ लुइस और ये बीजेडी, ये तीसरा बच्चा कहाँ से पैदा हो गया क्रिकेट के फील्ड में? ये इंद्रदेव की कृपा है, मैं यही कह सकता हूँ। इंद्रदेव की कृपा है, वर्षा जो ना कराए। बिल्कुल यहाँ, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर ट्रैक को देखे हैमिल्टन के ट्रैक पर चेजिंग फेवरेबल है टीम के लिए। अगर पिछले 8 मुकाबलों को देखे उसमें से 6 जो टीम ने चेज किया है वो जीती है। तो ऐसे में मैं कहूँगा मैच के स्टार्ट में न्यूजीलैंड एक फेवरेट देखती हूँ इस मुकाबले में। मेरे ख्याल से तो फेवरेट है। अगर बारिश पड़ गई और हमें तो एक्चुअली पता नहीं कितना हमने स्कोर करना है, तो वील ट्राई टू गो फॉर रन्स। हो सकता है बड़ा स्कोर हो जाए, हो सकता है जल्दी विकेट गिर जाए, बट न्यूजीलैंड डज हैव ए एडवांटेज इन दिस काइंड ऑफ ए वेदर कंडीशन। ओके, न्यूजीलैंड हैविंग अ बिग एडवांटेज। मलय, लेकिन इस पूरे प्रतियोगिता को देखे, जिस तरह से ये सीरीज है, कहते हैं यू गॉट टू लूज सम बैटल्स टू विन द बिग वॉर, and looking at the preparations that India is going into, keeping the 2023 World Cup in mind, we are on the right track? Of course we are on the right track. I mean, this is the time to try out your bench strength to the best of your ability. The way you are replacing people, it's fine, but well, I think that you need a second round of thinking over who to try and who to give a few more chances. Okay. वही कर्नल बुपराज, अगर भारतीय टीम की बात करें, भारत के पास एक ऑप्शन है, क्योंकि भारत 2023 विश्व कप के लिए ऑटोमेटिक एज होस्ट क्वालिफाई किया है, तो एक एडवांटेज है भारतीय टीम के साथ, वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अगले 11 महीने। हाँ, सही बात है, एक्सपेरिमेंट तो हम कर सकते हैं, बट वी हैव टू सी हु ऑल आर गोइंग टू फिट इनटू द टीम। ओके, राइट। अनिल, इसी के साथ बता दें कि हमारी टीम में एग्जैक्टली कौन कौन है फाइनल प्लेयर्स, क्योंकि हमने ये बता दिया कौन नहीं खेल रहे हैं और कौन खेल रहे हैं उनकी जगह। चलिए ये बताते हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन आज खेल रहे हैं। सो न्यूजीलैंड की टीम में है फिन एलन, डीवन कॉनवे, केन विलियमसन एज कैप्टन, डैरल मिचेल, टॉम लैथम, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर, मिशेल ब्रेसवेल, मैट हेनरी, टिम साउदी, लॉकी फर्ग्यूसन। अब बात करें भारतीय टीम की। भारतीय टीम का प्लेइंग 11: शिखर धवन कप्तान, शुभमन गिल सलामी बल्लेबाज, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत विकेट कीपर, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुडा, वॉशिंगटन सुंदर, दीपक चहर, उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह और युगवेंद्र चहल। तो भारतीय टीम यहाँ 11 खिलाड़ी जो आखिर में खेलेंगे। लेकिन मलय, अगर जो प्रदर्शन अब तक हमने दोनों ही टीमों का देखा है इस पूरे सीरीज में, T20 में और एक दिवसीय क्रिकेट में, क्या होता है न्यूजीलैंड में एक दिवसीय क्रिकेट में भारत क्यों स्ट्रगल करती है? पहले सीरीज से लेके पिछले सीरीज तक 2020 में भारत न्यूजीलैंड में एक दिवसीय श्रृंखला में स्ट्रगल करती है। देखिए, ऐसा है कि एक तो कंडीशंस वहाँ के पेस बॉलर्स को बहुत सपोर्ट करती हैं, और हमारी टीम में इस वक्त जो आपके टॉप पेस बॉलर्स हैं वो नहीं हैं, डेब्यूटेंट्स हैं, नए चेहरे हैं, ये वो उस तरह से नहीं कर पाते। दूसरी बात है कि जैसा कि आपने पिछले मैच में देखा, इस तरह की विकेट पर जब आप पहले बल्लेबाजी करने जाते हैं तो शुरू में आप थोड़ा सहम कर खेलते हैं। आप चाहते हैं कि पहले आपकी नींव को मजबूत करें, वहाँ खड़े रहें कुछ देर। अगर हम 5, 7, 8 ओवर निकाल लें और रन ना भी बने, तो रनों की रफ्तार शुरुआत से ही बहुत तेज़ नहीं रहने के कारण आप बहुत बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल से टॉस की भी अहम भूमिका है। यहाँ की जो ग्राउंड है, देखिए अभी भी घास है, तो इस तरह से देखते हुए और थोड़ी स्टिकी विकेट, इस तरह के क्लाउडी कंडीशंस, ओवरकास्ट कंडीशंस, तो न्यूजीलैंड और भारत में ये बहुत बड़ा फर्क है। Bupraj, we are saying that if like India has choose to ball and like
they'll be working on that. So if they're bowling and we don't have such strong bowlers here, so what will be the approach for the team to stop New Zealand from scoring a good amount of runs today? एक्चुअली ये जो वेदर कंडीशन है, दिस माइट हेल्प आवर फास्ट बॉलर्स ऑल्सो. बॉल स्विंग होएगी, ऑफ द विकेट मूव होगी, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे जो फास्ट बॉलर हैं वो शुरू में विकेट ले लेंगे. तो लेट्स सी, विकेट इज गोइंग टू हेल्प अस ऑल्सो. Well, exactly. It's going to be a good game of cricket there. The covers are off, so we're going to see the contest begin in a short while from now. We're going to hand it over to the commentators, but thank two gentlemen, two esteemed guests in the studios, Colonel Bhuprat Singh, Malay Neera, for joining us here in the special broadcast. Also, thank you, Damini. That's all we have time for. अनुमानों के आईने में प्रस्तुतकर्ता प्रवीण चंद